دوستوں، کرناٹک ریاستی حج کمیٹی کے تحت سفر حج 2022 کی تیاریاں زوروں پر جاری ہیں۔ ریاست کے مختلف شہروں میں حج تربیتی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ داونگیرے شہر میں معروف سماجی خدمت گزار ایوب پہلوان اور ان کے ساتھیوں نے مل کر عازمین حج کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کیا۔ داونگیرے اور چتردرگا ضلع کے تقریباً 250 عازمین نے اس تربیت سے استفادہ کیا۔ معروف عالم دین مولانا فضل الرحمان اور مفتی انیس الرحمان، داونگیرے کے خادم الحاج سید حبیب نے اللہ تعالی کے ان مہمانوں کو سفر حج، مناسک حج، مدینہ منورہ کی زیارت کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کیے۔ افتتاحی تقریب میں داونگیرے ضلع وقف مشاورتی کمیٹی کے سابق چیئرمین سراج احمد اور انجمن تنظیم المسلمین کے سابق صدر صادق پہلوان بطور مہمانان خصوصی موجود رہے۔ دیکھیے جنوبی نیوز کی یہ خصوصی پیشکش۔ یہ ہیں اور جو جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جانے والے ہیں، مولا تبارک و تعالی تکلیف کے آسانیاں عطا کرے جانے میں، اور وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کی صحت کاملہ عطا کرے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں، اپنے لیے جو بھی معاملہ ہو مانگ لیں، خاص کر مسلم مرد عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت اور مسجدوں کی حفاظت اور درگاہوں کی حفاظت، اور آپ وہاں جا کر یہاں کے مسلمانوں کا خیال کریں، ایمان کی مضبوطی کا خیال کریں۔ آپ اپنے لیے جو بھی دے گا مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری 4 رکعت نماز پڑھیں۔ جماعت امام کی نہیں مل رہی ہے، اپنی انفرادی آپ پڑھ رہے ہیں یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جماعت ادا کریں تو اس وقت بھی 2 رکعت آپ کو پڑھیں۔ مقامی امام کے پیچھے ہی پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا موقع مل گیا، جماعت بھی مل گئی تو اس وقت وہاں 4 رکعت ہی ادا کریں۔ عشاء کی نماز میں وتر بھی ہے، وہ سفر میں وتر وہاں پر ہی وتر بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے یہ اوپر سے آپ کا یہ چادر نیچے چلے جائے گا، اور پھر اس میں چلنے پھرنے میں بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہو۔ اور باندھتے وقت ذرا سا پیر چوڑا کر اس کو باندھیں، اور اندرونی جو کپڑے ہیں ہمارے وغیرہ وہ ساری چیزوں کو نکال کر رکھ دیں، اور پھر ایسے میں نیچے والی چادر ہوگی اور اوپر والی چادر اس طرح سے ہوگی۔ یہ اوپر سے چادر اس طرح رہے گی، کب تک رہے گی وہ بتاؤں گا۔ یہ سر پر بھی آپ کھولے ہوئے ہیں، اگر سر پر سے نکالنا کب ہے آپ کو بتاؤں۔ یہ تو مردوں کا احرام ہے، عورتوں کا احرام ان کی اپنے سلے ہوئے کپڑے۔ ہمارے اپنے جنوبی ہند میں بہت ساری عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں، وہ بے پردگی کا بھی اس میں اظہار ہوتا ہے۔ بہرحال آپ اپنے سفر حج میں جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے عورتیں جو اپنے لیے سر پر باندھنے کی واسطے سفید کپڑا وغیرہ لیتی ہے، وہ سفید کپڑا ان کا وہ چادر وہ احرام ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے داونگیرہ اور چتردرگا کے حجاج اکرام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو یہ نظام ہے، اس کا نظام ہمارے حج کمیٹی سے تعلق رکھنے والے سید حبیب صاحب، جو برسوں سے یہاں پر حج کیمپ کے مطلب یہاں پر ایک تربیتی کیمپ کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا اچھے طریقے سے نظام نہیں بنتا تھا، تو ہمارے یہاں کے سابق اربن ڈیولپمنٹ کے چیئرمین میرے عزیز دوست ایوب پہلوان صاحب نے گزشتہ 5-6 سال سے یہ تربیتی کیمپ کی پوری ذمہ داری لے کر انہوں نے خود اپنے ذاتی خرچ و اخراجات سے یہ تربیتی کیمپ کراتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر یہ نظام ہمارے داونگیرے ضلع میں نہیں تھا، تو ابھی چتردرگا اور داونگیرے ضلع کے جو بھی حجاج کرام جاتے ہیں ان کا تربیتی کیمپ سے لے کر صبح کے آنے جانے کا، شام کو ان کی روانگی تک ان کا جو بھی نظام رہتا ہے، وہ نظام کی ذمہ داری ہمارے علی جناب الحاج، وہ بھی حاجی ہیں، الحاج محمد ایوب پہلوان صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔
हाँ, यहाँ पर जो तरबेती कैंप है वो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी रहा, बीजेपी गवर्नमेंट में भी रहा, लेकिन उनसे सिर्फ हमें इंजेक्शन मुहैया होते हैं। जो भी खर्चो अखराजात जो भी किया जाता है यहाँ पर आने जाने का, वो हमारे, मैंने जैसा कहा अयूब पहलवान साहब का ये निज़ाम रहता है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर फरमाए, और मैं उनके अहल के खैर व बरकत की दुआ भी करता हूँ उनको और सादिक पहलवान साहब को, जिन्होंने बड़ा माशाअल्लाह बड़े अंदाज में हिस्सा लेकर ये हाजियों की खिदमत करते हैं। तो मैं हुकूमत कर्नाटक का भी शुक्रगुजार हूँ कि ये अच्छे तरीक़े से यहाँ पर कर रहे हैं। मैं उम्मीदगो हूँ कि वो हाजियों की जाने तक और वापस आने तक उनकी अच्छी खिदमत अंजाम दे। 2-3 साल लॉकडाउन पड़ा, जो मक्का मदीने में भी लॉकडाउन था, लोगों को जाने की तरफ से नहीं गए। इस बार बहुत हमारे डिस्ट्रिक्ट से 160 आदमी जा रहे, हमें उनको तरबियत उलमा दिन, हमें ज़िम्मेदारान तरबियत दी। छोटे छोटे आयता अलहम का सूरा, खुल्ला का सूरा, रब्बना आतेना फिद दुनिया फिल आखिरति हसनतुम वक़ीना अज़ाबन्नार, ऐसे छोटे सूर्य लगा लेता हुआ, तवाफ़ करते हुआ, ज़ियारत करते हुआ, लब्बैक कहते हुआ, अल्लाह ताला 40 दिन, 40 को 4 दिन, 40 को 5 दिन, 40 को 6 दिन तलका भी रुकती। मक्के से मदीने का आती, मदीने से मक्के को जाते हैं, वहाँ से उनकी जो रवानगी होती है वहाँ से एरिया से फ्लेटा से निकलती। लोगों को अमन के वास्ते और खुशियों के वास्ते हर कौम में मिलजुल को एक भाई होकर रहने के वास्ते, अपने सेहतों के वास्ते, हमारे गाँव घर रिश्तेदारी शहर मुल्क स्टेट में अमन और सुकून का पैगाम पहुंचाना, अल्लाह ताला का आता को तुम्हें दुआ करना, हमें अमन और शांति से रहने का पैगाम सुनाना, अल्लाह के पास दुआ करना कर बोल को हमें अन्य लोगों को और ख़वातीन को भी और अन्य बुज़ुर्गों को, जाने वाले हज यात्रियों को, सबको भी हमें ये नसीहत दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वो दुआ करेंगे, वो दुआ के साथ साथ हम भी दुआ करेंगे कर बोल को मैं बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद सादिक पहलवान। सबसे पहले जो गैर जरूरी बात है, मर्द भी औरतें भी इन जो है कानून को निकालने का भी जिक्र करें, उससे भी अपने आप को साफ सुथरा बनाएं। इसी तरीके से इहराम गुस्ल से बात करने की कोशिश करें और फिक्र करें। अच्छा, जिस वक्त आपकी रवानगी की इत्तला हो जाए, आपको जाने के लिए कहा जाए कि भाई खुला तारीख में आपकी फलेक है, 2 दिन पहले आपको बेंगलोर हज कैंप में बुलाया जाता है, वहाँ कुछ जरूरी कार्रवाइयाँ रहती हैं, उन कार्रवाइयों की पूरा करने के लिए आपको इत्तला दी जाती है। जब आप अपने घर से तैयार होकर आपको अपना प्लान बनाकर यहाँ से निकलने का वक्त आ गया, अब जिस वक्त आप निकल रहे हैं, घर से निकलते वक्त अपने घर के मर्द अहबाब अपने महल्ले की मस्जिद में जाए, 2 रकात नमाज पढ़ें। ये सफर की नियत से और सफर में आसानी के इरादे से 2 रकात नमाज अदा करें। और इसी तरीके से घर की औरतें अपने घर ही में 2 रकात नमाज पढ़े, सलातुल हाजत की नियत से, सलातुल सफर की नियत से नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारे अपने सफर को आसान करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार यही था कि जब भी आप सफर में जाते थे तो मस्जिद नबवी में आप तशरीफ ले जाते, वहां से सफर की इब्तिदा करते थे, फिर जब वापस होते थे तो आप मस्जिद नबवी में वापस पहले आते थे, नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद अपने घर वापस तशरीफ ले जाया करते। ये जो है सफर की दुआ पढ़कर अब सफर में चल रहे हैं, जिक्र अस्कार दुआओं के साथ हंसी मजाक खेल तमाशा नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह की बुलावे पर हम जा रहे हैं। अपने जूते से ही कर रहा है और अपने आप को सफर कर रही है और बिल्कुल सिरे खामोश होता है, उससे कहीं ज्यादा अपने रब की बारगाह में अदब के साथ मिलना। ऐसा नहीं कि सफर शुरू हो गया, गाना बजाना भी हो रहा है, वही दवाई वाली चीजों में हम लगे, बिल्कुल सारी चीजों से मुक्ति होकर एक दूसरे के साथ मर्द के सामने चेहरा दिखाना ही नहीं बना। इससे बचने के लिए वो सज्जे वाले जो हैट है उस हैट को इस्तेमाल करें और उस हैट पर से अपने ऊपर से चादर डालें ताकि कपड़ा चेहरे पर ना लगे और चेहरा भी, और फिर आपका चेहरा भी खुला हुआ रहे, जिस पर कपड़ा ना लगे। ये एहतियाती तदबीर, ये इख्तियार करते हैं। अब आप खुशबू वगैरह से मुअत्तल हो सकते हैं, लेकिन अब आपने इहराम की नियत मानने के बाद 2 रकात नफिल नमाज इहराम की नियत से पढ़नी, मर्दों को भी औरतों को। 2 अंग्रेजी जानता हो तो कोई सत्ता आपके रहकर नहीं करे, और अगर वो भी अंग्रेजी नहीं जानता है
आप अंग्रेजी जानने वाले हैं लेकिन आपको फिर रहबरी नहीं हासिल होगी। इसलिए जरूरी है कि आप उनके विजिटिंग कार्ड वगैरह को ले जाएं। आप किसी को भी अजनबी को भी दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मंजिल पर बुलाकर आपको पहुंचा देंगे। आप जब घर से अपने कमरे से एहराम के उम्रे के इरादे से निकल रहे हो, सुन्नत तरीका ये है कि यहाँ पहुंचने के बाद गुस्ल करने के बाद पीछे बैठ और कहीं चले गया तो कहीं चला गया, अब वो खाना जाती है, भूख लगी हुई है या कोई और है टैक्सी वगैरह पकड़ भूख चले जाने की वजह से आपकी मंजिल पर आना चाहते पैसे नहीं तो क्या करें। इसलिए कुछ पैसे अपने घर वालों के पास भी और औरों के पास भी और कुछ पैसे अपने पास भी रखें। आजकल तो दो उल्टा है, पहले दो था, अब तो सब होम मिनिस्टर का ही काम कर रहा है नहीं, अब तो उनसे लेना पड़ेगा आपको। अल्लाह ताला हमारे औरतों की अपने सलीम अता फरमाए। औरत अपने शौहर की आतिथ्य में रहना चाहिए, औरत को अपने शौहर को मालिक ही बनाकर रखे, गुलाम ना बनाए, वरना भी नाज़िम आएगा कि गुलाम की बीवी है नहीं। अपने शौहर को मालिक बनाकर रहोगी तो मालिक की बीवी कहलाओगी, और अगर अपने शौहर को गुलाम बनाओगी तो गुलाम की बीवी तुम ही तो कहलाओगी। इसलिए अपने मर्दों को मालिक ही बनकर रहने दीजिए, उसको अपना गुलाम ना बनाए। अब आप और से मुज़दलिफा पहुंचे। मुज़दलिफा पहुंचने के बाद आप अपने काफिले के साथ मर्द भी औरतें भी कि अपनी नए जमात के साथ आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें। आपने पहले अज़ान पहले और फिर उसके बाद पहली इकामत देकर मगरिब की फर्ज नमाज पढ़ें। मगरिब की फर्ज नमाज पढ़ने के फौरी बाद इशा की फर्ज नमाज पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले उस पाक परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम जैसे गुनाहगारों को, हम जैसे नाचीज़ को अल्लाह ताला एक हुज्जाज इकराम को जाने की जो तमन्ना है उनको खिदमत के लिए हमें चुना है। मैं सबसे पहले उस परवरदिगार का मैं शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद तमाम जितने भी यहाँ पर जो जमकर ये जो साथ दे रहे हैं हाजियों की खिदमत करने के लिए, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, बुजुर्गों ने कहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद व अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले, मैं अपने दीनदार भाइयों से, मैं हुज्जाज इकराम से यह दरख्वास्त करता हूँ कि आप हज पर जाएंगे तो काबे को जिस तरह काबा आपको दीदार होगा उस तरह आप हिंदुस्तान के, ख़ास कर को हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इत्तेहाद, मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होने के लिए दुआ करना गरबर को मैं दरख्वास्त करता हूँ। इसलिए अल्लाह से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हुज्जाज इकराम हमारे दावणगेरे जिला खादिमुल हुज्जाज कमेटी से की तरफ से जो हाजियाँ जा रही हज को जा रही हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह से दुआ कर को हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ करें और कर्नाटक रियासत के मुसलमानों के वास्ते ख़ास कर दुआ करें। ये क्या है, खिदमत का मौका अल्लाह हमने दिया, हमारे से ले रहा, इसका अजर अल्लाह देने वाला। कुछ भी क्या तभी कमी हुई तो ना एक रोज़ सुबह में है ना नाश्ते का इडली बड़ा चटनी का इंतज़ाम किए हाजियों के वास्ते, खिदमत करने वाले के वास्ते। बाद दोपहर में बाद खाने का भी इंतज़ाम करे थे। इंशाअल्लाह सभी खाने पीने का अच्छा बना के ना खिलाई, पानी का, खाने का, जूस का सब इंतज़ाम करे थे। क्या तो भी हमारे से क्या तो भी तो गलती माफ़ करो, हमारे बच्चों के वास्ते, हमारे वास्ते, हर मुस्लिम, हर मुसलमानों के, मोमिन मुसलमानों के वास्ते दुआ में याद रखो।
सबका भी मैं शुक्र गुजारना चाहता हूँ। सब कौन कौन ही सब मिलकर करी खिदमत, मैं शुक्र गुजारना चाहता हूँ जो कुछ के हमें 7 साल से कर रही। ये बीच में लॉकडाउन था ना, 1-2 साल ये हुआ था। ये अब ये साल से और शुरुआत हुई, इंशाल्लाह हम और मौका मिला करने का। ये अल्लाह इसका अजर देता है, तो अल्लाह हमारे हाथ से लेना चाह रहा है इसका, ये वो वास्ते कर रही है। हमने बहुत ये है करना, अगर कुछ था करे हमें क्या तो भी हमारे से क्या तो गलती हुई तो माफ़ करो। हमारे बच्चों को, हर मोमिन मुसलमान को अल्लाह उस जगह को बुलाना, एक बार दीदार कराना उसे भी। अयूब पहलवान साहब, ये फंक्शन बहुत बड़े करोड़पति हैं दावणगेरे में, बहुत अरबपति हैं, मगर ये मौका किसको भी नहीं मिला। मगर मिला पहले तो अल्लाह रसूल के बाद अयूब पहलवान साहब की ये बहुत बड़ी खिदमत है। उनके दामाद, उनके फर्जंद, उनकी बेटी, सब कुछ ये बहुत खिदमत कर रहे हैं। वहाँ अल्लाह की बारगाह में सब में खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, तो वहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि ये बादशाह है, ये गरीब है, ये फकीर है, ये मोहताज है। नहीं, ये भी सब में खड़ा कर दिया। तो इस एतबार से इस्लाम सब कुछ चाहता है। जो भी मुसलमान है, करना जो है वो सब कुछ इस्लाम चाहता है, और इस्लाम आया है रसूल मकबूल के सदक़े में। इसको मद्देनजर रखते हुए फर्ज करें कहाँ और आप मुसलमान में हमारी जो खिदमत है 1980 पर 6 से हमने पानी की जहाज़ के वक्त से खिदमत करते आए। जहाँ पर अजीज सेठ साहब मिनिस्टर थे और जोराजर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस ज़माने से अब तक हज की खिदमत करते आए हैं। अब तक हमें हाजियों को तश्कील कर हज़ारों से हाजियों को तश्कील करके हज को भेजे हैं। और इस बार जो है 2 साल से हाजियों की खिदमत करने को मौका नहीं मिला। अल्लाह के फजल और करम से इस साल हज को जाने वालों के लिए मौका मिला। ये इस साल हज कमेटी वालों से हमारे न्याय दोस्त जनाब अयूब पहलवान साहब जो और हमारे आदिमुल हुज्जाज कमेटी के जिम्मेदार हैं, और चौकीपेट मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, और उन्होंने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ भी उनके दोस्त अहबाब भी साथ दे रहे हैं। हमारा जो है हज कमेटी से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि हाजियों को जो तकलीफ है वो तकलीफ होने ना दे। आज का प्रोग्राम जो हो रहा है यहाँ पर जो राजमहल जो है, राजमहल के मालिक के मकान जो हैं उनका इंतकाल होकर 1 साल का अरसा हुआ। उनके फर्जंदों ने यहाँ पर शादी महल में खिदमत करने का मौका देकर उन्होंने खिदमत की। और दूसरा हमारे जो पहलवान अयूब साहब जो हैं, ये जो निज़ाम जो चल रहा है यहाँ पर हुज्जाज इकराम की खिदमत का निज़ाम, उन्होंने साथियों को लेकर अपने ज़ाती पैसे से खर्चा कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी जान माल में बरकत दे और ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। हज कमेटी की तरफ से क्या? हज कमेटी से इतना मालूम हो रहा है कि हज कमेटी से मालूम इतना करा रहे हैं कि तारीख जाने की तारीख मुकर्रर है। 9 तारीख से फ़्लाइट निकलेंगे और 15 तारीख को ख़त्म होंगे। 7 फ्लाइट होगा। 7 फ्लाइट में एक फ़्लाइट में 450 हाजी जाएंगे। फर्स्ट यहाँ से बेंगलुरु से मदीना जाएंगे, मदीना से मक्का जाएंगे, मक्के से हज होने के बाद डायरेक्ट जिद्दा टू बेंगलुरु वापस आएंगे। करने की कोशिश करें और अच्छा जिस वक्त आपकी रवानगी की इत्तला हो जाए, आप बुलाने के लिए कहा जाए कि भाई पूरा तारीख में आपकी फरेक है, 2 दिन पहले आपको बेंगलुरु हज कैंप में बुलाया जाता है, वहाँ कुछ जरूरी कार्रवाइयाँ रहती है, उन कार्रवाइयों की पूरा करने के लिए आपको इत्तला दी जाती है। इंशाल्लाह अच्छा रहा। इस बार हम लोग बड़ी कोशिश में थे कि जाने के लिए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इस बार वो बुला रहा है हमें। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हज को बुलाए और हमें हज करने के नसीब में अता करे। ये लोग जो खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और जल्द से जल्द मालूम हो जाएगा तो हम लोगों को आसानी होगी। और ये लोग जो हज कमेटी से जो हम लोग मियाँ बीवी जा रहे हैं, हमारे साथ में हमारे एक दोस्त हैं। जी हाँ।
कितने सालों से तमन्ना थी कि हज पर जाएं? शुरुआत जिंदगी से कोशिश हो रही थी आपकी? नहीं, हम लोग 2019 में कोशिश किए थे, मगर तो गड़बड़ हो गई कि वो एजेंटों ने कुछ ये कर दिया था। अल्लाह का फजल, इस बार हम लोग मुतमईन के लिए गवर्नमेंट में डाल दिए, क्योंकि एजेंटों का कुछ मामले गड़बड़ हो रहे हैं, तो डाल दिए। हमारा पूरा भी उठा है, अल्लाह का एहसान है कि वो बुला रहा है। आप भी दुआ फरमाइए कि हमें नसीब हो। कहाँ से हैं आप? दावणगेरा ही है हमारा। मैं होडलकेरे से आया हूँ। इंशाअल्लाह आज दावणगेरे के अंदर जो हज का एक दिन का प्रोग्राम था मुकम्मल तौर से चला। माशाअल्लाह जो हजरात जाकर आए हैं उन्होंने भी उनकी जो कारगुज़र रहती है वो सब समझे, और मौलवी साहब भी हरानी हज के अरकान के बारे में सब भी समझे। इंशाअल्लाह कामयाब हुआ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफुल्लाह, मैं होडलकेरे से रहने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महबूब खान है, शहर चित्रदुर्गा से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले इस दावणगेरे इंतज़ामिया कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इंतज़ाम किया और हाजियों को खिदमत करने का उन्होंने खुद जिम्मेदारी लिए। अल्लाह का फजल है, जो उन्होंने अपने दिल से और जान से माल खर्च किए हैं उनको कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मासूम अली है। मैं यहाँ पर एक स्कूल में हेडमास्टर का हैसियत से काम कर रहा हूँ। इसी बार पहली बार हमने इस हज के लिए एप्लीकेशन डाला है, और पहली बार ही मेरा और हमारी बीवी का दोनों का भी सिलेक्शन हुआ है। माशाअल्लाह, जिससे जैसे हमारे तरीके से शायद दो साल के बाद ये हज का दोबारा शुरू हुआ है, फिर भी ज़रा बेहतर दिख रहा है हमको भी। इंशाअल्लाह जो हमारे दावणगेरे के हुज्जाज कमेटी वालों ने इस हमको तरबियत का प्रोग्राम रखे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा दे रहे हैं। जैसे कि अरकानों के बारे में, और वहाँ पर कैसा हमें बिहेव करना, उसकी उन सब के बारे में अच्छे तरीके से हमें गाइडेंस दिए हैं, और मेरे तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम फिरदौस बानू है। मैं देवरटी स्कूल में HM का काम कर रही हूँ। अभी इस साल मुझे हज को जाने का निहायत ही एक बेहतरीन मौका अल्लाह ताला ने दिया है। मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र एहसान बजा लाती हूँ कि इस मुक़द्दस सफ़र पर मुझे जाने का एक बेहतरीन मौका इनायत फरमाया है। और आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने से मुझे बहुत सारे मनासिक के हज और फ़राइज़ और अरकान के मुताल्लिक़ मालूमात मिले हैं। तो इसको कंडक्ट करने वाले यानी अरेंज करने वाले मैं इन तमाम का मेरी तरफ से और तमाम दावणगेरे के हुज्जाज कराम के तरफ से मैं इनका शुक्र अदा करते हुए अल्लाह का भी बहुत बड़ा एहसान है कि इस कोरोना के जो कोविड-19 के बाद बहुत दिनों के बाद ये हज के फ़राइज़ को अदा करने का मौका मिला है। तो मैं मेरे तरफ से और आप तमाम इंतज़ामिया के तरफ से मैं शुक्र अदा करती हूँ कि इस बेहतरीन जलसे में बेहतरीन प्रोग्राम में हिस्सा लेने का और आपके सामने बात करने का मुझे एक मौका इनायत फरमाया है। मेरा नाम सबिहा बानू, मैं चित्रदुर्गा से आई हूँ। बहुत अच्छा था प्रोग्राम, यहाँ का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था। मुझे भी यहाँ आने के बाद बहुत सारे मालूम हुए। अभी चल रहा है प्रोग्राम, इसका भी अभी इंशाल्लाह हम और जाके सुनेंगे और मालूमात होगी हमें। बस मैं इतना कहती हूँ, इस्लाम कहती हूँ। वहाँ फैला चादर हमें भी याद कर लेना, जो देखो तुम खुदा का घर। कभी बाप भाई घर वतन
ये याद आएंगे ये याद आएंगे हमें भी याद कर लेना जो देखो तुम खुदा हाफिज खुदा नासिर खुदा के तुम हवाले हो खुदा हाफिज खुदा नासिर खुदा के तुम हवाले हो करेंगे याद हम अपनी सन करेंगे याद हम अपनी सन हमें भी याद कर लेना जो देखो तुम खुदा का घर हमें भी याद कर लेना रसूले पाक के दर पर हमें भी याद कर लेना जो देखो तुम खुदा का घर اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وفتناتها ومصيباتها وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين اے کریم اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ عفو کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سب تیرے بندے اور بندیاں ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے درمیان تیرے وہ نیک بندے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تو نے اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے اے اللہ تو نے اپنی طرف سے بلوایا ہے بلانے والا اے اللہ خود ہی آنے والے لوگوں کا اکرام کرتا ہے اے اللہ اس کو دھکے نہیں دیتا کچھ نوازنا ہی تو بلایا جاتا ہے مالک آپ تو سب سے زیادہ نوازنے والے ہیں اے اللہ یہ ہمارے اپنے درمیان بیٹھے ہوئے تیرے گھر کے مہمان ہیں جن کو حدیث میں ضیوف الرحمان کہا گیا اے اللہ تیرے مہمان بن کر آ رہے ہیں اے اللہ تو ان کی قدم قدم پر رہبری فرما قدم قدم پر رہنمائی فرما ان کو صحت عطا فرما ان کو تندرستی عطا فرما اے اللہ ان کے ارکان کے راکمی میں سنتیں اور مستحبات تک کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کی سہولتیں مہیا فرما اے اللہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرما مولا کریم بہت سارے مرد اور عورتیں اے اللہ کے پیچھے گھر میں تقاضے چھوڑ کر اے اللہ اپنے بال بچوں کو ترک کر تیرے در پر حاضری کی شوق میں آ رہے ہیں اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما کوئی اپنے جوان بچے بچیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کوئی اپنے پیچھے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کوئی اپنے دودھ پیتے بچے معصوم اور خوشیدہ بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں مولا ان کی جانب کو قبول فرما لے ان کی لاز رکھ لے اے اللہ ان کی قدم قدم پر رہبری اور رہنمائی فرما دے ہر رکن کے ادا کرنے میں سہولتیں پیدا فرما ہر رکن کے ادا کرنے میں آسانیاں پیدا فرما ان کے حج کو حج مبرور بنا ان کے حج کو حج مقبول بنا اے اللہ یہ حجاج تیرے در پر کھڑے ہو کر جہاں دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے ہم گنہگاروں کو بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما ان کی دعاؤں میں ہم گنہگاروں کو بھی شامل فرما اے اللہ ان خدمت کرنے والوں کو بھی اللہ ان کی دعاؤں میں شامل فرما اے اللہ نبی علیہ السلام کے روضے پر کھڑے ہو کر جب یہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے ہم گنہگار امتیوں کا بھی سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرما اے اللہ ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں تیرے گھر کو دیکھنے کی تمنائیں رکھتے ہیں مالک کو اسباب کا محتاج نہیں ہے بغیر سبب کے بھی بنا لیتا ہے تو لوگوں کی طرف پر وہ اپنے گھر کی حاضری کو قبول کر لیتا ہے
اے اللہ دلوں کے حال تو بہتر جانتا ہے، ہمارا دل بھی تیرے گھر کو دیکھنے پر ترس رہا ہے، تیرے نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مالک تو ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنے نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کی حجاج کرام کے حج کو ذریعہ بنا کر سارے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کے فیصلے فرما۔